السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا، مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ کسانوں و غربا کی مدد کرنے والی ایک ہی حکومت ٹیآرایس حکومت۔ کسانوں و دلت طبقے کی ترقی کے لیے سی ایم KCR کی جانب سے بے شمار اسکیمات جاری۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی انہوں نے کوٹگر منڈل کے دورے کے دوران ٹریکٹر چلایا و مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی کارکردگی سے مخالف قائدین بوکھلاہٹ کا شکار، اقتدار میں آنے کے لیے عوام کو کر رہے ہیں گمراہ۔ PUC کمیٹی چیئرمین و MLA جیون ریڈی کا صحافتی بیان۔ ضلع پریشد اجلاس کا ضلع پریشد چیئرمین کی صدارت میں انعقاد، مختلف مسائل پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ موسمی امراض سے بچنے کے لیے عوام کو آگاہی دی جائے۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و ضلع سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج کا اجلاس سے خطاب۔ ڈونکیشور میں محبت کے نام پر ایک نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی، حاملہ ہونے پر افراد خاندان کی جانب سے پولیس اسٹیشن میں کیا گیا مقدمہ درج۔ خانقاہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر جلسے یاد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد۔ جلسے میں انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے اراکین نے کی شرکت و خطابات۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کسانوں و غربا کی مدد کرنے والی ایک ہی حکومت ٹیآرایس حکومت۔ کسانوں و دلت طبقے کی ترقی کے لیے سی ایم KCR کی جانب سے بے شمار اسکیمات جاری۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی انہوں نے کوٹگر منڈل کے دورے کے دوران ٹریکٹر چلایا وہ مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ 22واں حلقے کوٹگر منڈل میں اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی کا دورہ اور ترقیاتی تعمیری کاموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد۔ تفصیلات کے مطابق اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے کوٹگر منڈل کی موضع ٹاکلی میں 20 ڈبل بیڈ روم مکانوں کا افتتاح کرتے ہوئے مزید 40 ڈبل بیڈ روم مکانوں کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے 16 لاکھ روپیوں کی لاگت سے گرام پنچایت عمارت اور ڈاگرہ عمارت کا بھی افتتاح عمل میں لایا۔ انہوں نے اس موقع پر عوام سے کہا کہ جو افراد اپنے پرانے مکان میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان افراد کے لیے بھی حکومت تلنگانہ کی جانب سے تقریباً 5 لاکھ روپیوں کی سہولت مہیا کی گئی ہے، وہ بھی اپنا مکان تعمیر کروا سکتے ہیں۔ اور کہا کہ موضع ٹاکلی تا موضع سالم پاٹ تک جانے والی سڑک کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری آ چکی ہے، بہت تعمیری کام میں لائی جائے گی تاکہ کسانوں اور عوام کو کافی سہولت مہیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ریاست تلنگانہ کی غریب عوام ہر طرح سے کئی اسکیمات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ٹیآرایس اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری کی حضور آباد جلسے عام میں شرکت اور ریاستی وزیراعلیٰ KCR تلنگانہ کے عوام کے لیے مہاتما گاندھی و ڈاکٹر BR امبیڈکر دیا قرار۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی جانب سے حضور آباد میں گزشتہ ایک عظیم الشان جلسے عام کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے دلت بندھو اسکیم کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں سی ایم KCR کی جانب سے مدعو کرے جانے پر ٹیآرایس اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری نے شرکت کرتے ہوئے اس تاریخی جلسے عام کا حصہ بنتے ہوئے سی ایم KCR سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ہمراہ پروگرام میں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سی ایم KCR نے پہلے اپنی جدوجہد سے ریاست تلنگانہ و آندھرا حکمرانوں سے کروایا
آزاد اور آج سماج کے بچھڑے ہوئے طبقے کی مدد کے لیے دلت بندھو اسکیم کا آغاز کرنا یہ ایک عظیم قائد کی نشانی ہے اور عوام کی جانب سے انہیں پہلے تلنگانہ کے گاندھی کہا جاتا تھا۔ دلت عوام کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر جی کی شخصیت سے بھی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ محبت کے نام پر کیا نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی، معاملہ منظر عام پر مظلوم کے افراد خاندان کی جانب سے کروائے گئے محکمہ پولیس میں شکایت درج۔ نندی پیٹ منڈل موضع ڈونکیشور میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایسائی شوبھن بابو نے بتایا کہ ڈونکیشور دیہات کے ایک ہی کالونی میں مقیم نوجوان نے نابالغ لڑکی کو محبت کے جال میں پھانس کر بناوٹی باتوں کے ذریعے اپنی جنسی ہوس کا شکار بنانے کے باعث لڑکی حاملہ ہو گئی، جس پر متاثرہ نابالغ لڑکی کی والدہ نے مقامی پولیس اسٹیشن میں درخواست پیش کرنے کی بنا پر کیس درج کر کے قصوروار کو تحویل میں لے کر جانچ پڑتال کرنے کا انکشاف کیا۔ నిన్నటి రోజున మనకి నందిపేట మండల పోలీస్ స్టేషన్కి మైనర్ బాలికపై రేప్ జరిగిందని ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। కేసు నమోదు అనంతరం ఆ బాలికను చికిత్స నిమిత్తం వైద్యశాల హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది। आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ टीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया के साथ इजलास मुनक़्क़िद करके सीएम केसीआर की क़यादत में होने वाली तरक्की से अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होने का किया इंकशाफ। आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया का इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में होने वाली तरक्की से बीजेपी, कांग्रेस व दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं, जिनमें निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने से साबित होता है। और इसी तरह से कांग्रेस के टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी भी अपनी गैर अखलाकी हरकतों का इर्तिकाब करने के अलावा बेजा इल्जामात आयद करना तरक्की को हजम न करने के मुतरादिफ होने का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से दलित तबके की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए दलित तबके को माशी हालत में मुस्तहकीम बनाना भी इन अपोजिशन कायदीन को हजम न होने का इंकशाफ किया। सदन नशीन जिले परिषद चेयरमैन विठल राव की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सदन नशीन जिले परिषद विठल राव की सदारत में मुनक़्क़िदा इजलास में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, सीईओ गोविंद, एमएलसी गंगाधर गौड़ वो दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर ओहदेदार ने डीआरडीए, महकमे सेहत, तीब, ज़राअत, मिशन भगीरथा, बरक़ी व दीगर महकमे जात के मुतालिक तफसीलात बताने पर मेम्बरान ने बहस व मुबाहिसा किया। इजलास से कबल अज वक्त नौमुंतखब लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन LMB राजेश्वरी के इजलास में पहली मरतबा आने पर कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान ने तहनीत अमल में लाई। इसी तरह से जिले को मुकामी इदारों के ओहदेदार की जानिब से एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस के कहर की वजह से कई तरक्याती काम ठप हो गए, लेकिन अब कोविड में कमी होने की बिना पर जिला इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए मंसूबा बनाने का इंकशाफ किया। వాళ్ళకు మరి పొలిటికల్ ట్రాకింగ్ ఉందో ఇంకోటి మేము ఎంతకంటే తప్పియం లేకుంటే మీరు తీసుకెళ్ళండి వాపస్ చేయడం కూడా జరిగింది। అటువంటి కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తగా అంటే ఒక స్పీకర్ తీసుకురాకుండా రామరావు ఏమిటి మంచి ఫలితాలు అందుకని గట్టిగా వెళ్తున్నాం। సో దాంతో ఎక్కడైతే తప్పున్నాయో ప్రతి విదేశీ ప్రతి దానికి రీజన్ రాస్తున్నాం, ఈ రీజన్తో రేట్ చేస్తున్నాం। गैर समाजी व गुंडा नासिर औकात में आ जाए वरना इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार है पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया।
जिले पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने अवाम से अपील की कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जिले पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने अवाम से अपील की कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद व निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजनों में जहां कहीं भी कानून के खिलाफ सरगर्मियां नजर आए अवाम मंदरजा झैल फोन नंबर पर पुलिस को इत्तला दे। वाज़ेह रहे कि इत्तला देने वालों के नाम को राज में रखा जाएगा। आपके इलाके में झगड़े, खवातीन व लड़कियों के साथ छेड़खानी, मकानात के सामने आवारा लड़कों की हंगामी आराई, जराइम व हादसात, शराब की गैर कानूनी फरोख्त, जिस्म फरोशी, मटका, जुआ, गुटका, मुरम और रेत की स्मगलिंग, जमीनात पर कब्जा, गुंडा नासिर की जानिब से डराने धमकाने, ब्लैकमेलिंग, चीटिंग, जुआबाजी, नौजवान गर्वों की शक्ल में चौराहों और गलियों में अड्डा जमा कर मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बनने पर फौरी पुलिस को इत्तला देते हुए जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की राह हमवार करे। समाज में जराइम की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने से जराइम पर काबू पाने वाली पुलिस अपनी खिदमात को वसी पैमाने पर अंजाम दे रही है। डायल 100 पर कॉल करते ही कुछ ही देर में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मज़कूरा सेल नंबरात पर पुलिस के साथ ताउन करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबरात पर रब्त पैदा करें। CP कैंप ऑफिस 08462221750, स्पेशल ब्रांच 9490618000, स्पेशल कंट्रोल रूम 08462226090, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर 9440795452, CCRB इंस्पेक्टर 9440795472, स्पेशल नंबर 9491398540। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने म्यूनिसिपल इमरजेंसी टीम के हमरा डिवीजन नंबर 9 साईनगर वार्ड नंबर 3 का दौरा करके साफ सफाई पर मबनी कामों का लिया जायजा। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने डिवीजन नंबर 9 साईनगर रोड नंबर 3 में गुज़िश्ता मुनक़िदा दौरे के मौके पर खाली व अराज़ियात में जमा पानी के ज़ख़ीरे में ऑयल बॉल्स को डाला गया था। आज मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्त पर मेयर ने म्यूनिसिपल इमरजेंसी टीम के हमरा जमा पानी के ज़ख़ीरे की निकासी अमल में लाते हुए कहा कि मौसम बरसात के बाइस खाली अराज़ियात पर पानी का ज़ख़ीरा जमा होने की बिना पर मच्छरों के बढ़ने के इम्कानात के पेश नज़र जिम्मेदार ओहदेदारान को जमा पानी के ज़ख़ीरे में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए ऑयल बॉल्स डालने का इजहार करते हुए कहा कि गंदे केनाल के हर रोज साफ सफाई करने के अलावा मच्छरों से निजात के लिए जरासीम का शद्वियात का छिड़काव करने के लिए हिदायत जारी की। పూర్తిగా ఏదైతే మనం పైపు మోటార్తోని తీసేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు, జవాన్లు అందరూ కూడా దాదాపుగా ఒక 1 వీక్ నుండి ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా ఈ వాటర్ అంతా తీసేయడం జరుగుతుంది। सहारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से फ्री बस पास की तक़सीम। आज सहारा फाउंडेशन निजामाबाद के जिम्मेदार साबिर हुसैन की निगरानी में माजूर अफराद में सफर की सहूलतों को फराहम करने आमदरफ्त की खिदमात के लिए तेलंगाना RTC से नुमाइंदगी करते हुए फ्री बस व ट्रेन पास की तक़सीम अमल में आई। शेख अमीन जो 90% माजूर है, इनके हवाले फ्री बस पास किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर आसिम साबिर हुसैन, जुबैर खान, सैयद जाहिद, मोहम्मद फारूक ने शिरकत की। NGOs में काम किया जाता है। आज हम एक महफिल में जमा हुए जिसमें सागर में जो है डिसेबल 90% डिसेबिलिटी के साथ जो शेख अमान है हमारे साथ, उनको बस और ट्रेन का फ्री पास सहारा फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं साबिर भाई के ये वर्क को, ये एफर्ट को, जो मतलब कि शेख अमान तक कोई पहुँच नहीं सकते थे, वहाँ पे साबिर भाई पहुँच के ये काम करे। बिल्कुल आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि साबिर भाई के साथ काम करूँ। मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, बट इंडिविजुअल अपने हद तक जितना होता है वो अपना कर रहा हूँ। अभी साबिर भाई से मिलने के बाद में, साबिर भाई के साथ आने के बाद Good morning everyone. Today I proudly take the opportunity to speak to you on our 57th Independence Day. August 15, 1947, our country got independence. निजामाबाद ACP A वेंकटेश्वरलू के हाथों नवीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई नालेश्वर देहात में 22 CC कैमरों का इफ्तिताह अमल में लाया गया।
नवीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ नालेश्वर देहात में दही तरक्की कमेटी व मुकामी अवाम की ज़ेरे निगरानी में निजामाबाद ACP ए वेंकटेश्वर के हाथों 22 CC कैमरों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने CC कैमरों की तनसीब के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि तमाम अफराद अपनी दुकान और मकान के सामने CC कैमरों की तनसीब करे, क्योंकि एक कैमरा 100 पुलिस जवानों की खिदमत अंजाम देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम पुलिस का मुकम्मल ताउन करने के लिए आगे आए और शहर को जुराइम से महफूज रखने के लिए पुलिस की जानिब से दी जाने वाली हिदायतों पर अमलावरी करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नॉर्थ रूरल CI के गुरुनाथ, नवीपेट SI याकूब, मौजे के सरपंच, MPTC VDC प्रेसिडेंट श्रीनिवास, PSCS चेयरमैन हनुमंतलू, तुनगिनी सरपंच विजय रविंदर, मुकामी अवाम व कल्चरल पुलिस टीम ने शिरकत की। ఒక సీసీ కెమెరా పెట్టుకుంటే ఒక 100 మంది కానిస్టేబుల్ అక్కడ ఒక మనిషి 8 గంటల కంటే ఎక్కువ పనిచేయదు, కానీ ఒక సీసీ కెమెరా 24 గంటలు పనిచేస్తుంది. దయచేసి వీటిని చక్కగా మెయింటైన్ చేసి చక్కగా ఉంచాలని చెప్పి వీడియోస్ వారికి పెట్టడమే కాదు, పెట్టడంతో పాటు మెయింటెనెన్స్ కూడా అదే ఏజెన్సీ వాళ్ళకి ఒక 3 సంవత్సరాలు అప్పగిస్తే। मेयर नीतू किरण के हाथों टाटा AC गोल्ड पेट्रोल मॉडल गाड़ी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मेयर नीतू किरण ने शहर के नए कलेक्ट्रेट के पास टाटा AC गोल्ड पेट्रोल CX मॉडल गाड़ी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि अवाम को बहुत ही कम कीमत पर बाइक फ्राहम करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को सहूलत फ्राहम करने के मकसद के तहत वाजिबी कीमत पर बाइक फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर शोरूम MD विकास रेड्डी ने कहा कि बाइक खरीदी करने वाले अफराद के लिए काबिल फायदा मंद होने का इंकशाफ किया। వినియోగదారులు చాలా మంది ఉంటారు, కాకపోతే అందులో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అఫోర్డ్ చేయలేరు, కాబట్టి మరి వాళ్ళకు అనుగుణంగా కంపెనీ వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఆలోచించి మరొక 1 లక్ష తగ్గించి వాళ్ళకు అందజేయాలని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచన చేయడం జరిగింది। 3.99 lakhsకే షోరూమ్ రేట్కే ఈ వెహికల్ మేము ప్రజలకి అందించడం జరుగుతుంది। గతంలో ఉన్న పేలోడ్కి ఏమాత్రం కూడా తగ్గకుండా అదే పేలోడ్ కెపాసిటీతోని 1 లక్ష రూపాయల కాస్ట్ తగ్గించి వినియోగదారుడికి మరింతగా చేరువయ్యేలాగా मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑनलाइन इजलास औकाफ और दीगर उमूर पर फैसले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का ऑनलाइन इजलास आज बरोज़े पीर मुनक़िद हुआ। बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुसैनी नदवी ने सदारत फरमाई और कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मीटिंग की निज़ामत की। इन्होंने गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिसमें खास तौर पर इस्लाह मुआशरा कमेटी, दारुल खसना कमेटी, सोशल मीडिया डेस्क और लीगल कमेटी के जरिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा पेश किया, जिस पर तमाम हाजिरीन ने एतमाद का इजहार किया। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक चलाने पर जोर दिया गया। मुसलमानों और बिलखुसूस औक़ाफ़ के मुतल्लियान को मुतवज्जे किया जाए कि वो वक्फ के नाजायज इस्तेमाल से बचे और औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। अनक़रीब इस सिलसिले में बोर्ड की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। मीटिंग में ये बात भी तय की गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतालिक बोर्ड का मुरतब किया हुआ दिफा वार मजमुआ क़वानीन इस्लामी जल्द जल्द उर्दू और अंग्रेजी में शाये कर दिया जाएगा। तेलंगाना ओपन SSC व इंटरमीडिएट कोर्सेज में दाखिलों का ऐलान। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी TOSS ने साल बरए 2021-22 के लिए SSC और इंटरमीडिएट में दाखिलों का ऐलान कर दिया है। अहमद बुखारी सेक्रेटरी एजुकेशन फाउंडेशन ने बताया कि मज़कूरा कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज के मुमासिल रहेंगे। ऐसे तलबा जिनकी उम्र 14 साल मुकम्मल हो चुकी है वो SSC कोर्स में शिरकत के लिए अहल होंगे। इंसदाद में 4 अदद फोटोज, आधार कार्ड, रिहायशी पते का प्रूफ, दस्तावेजी सबूत, TS या तारीख पैदाइश का सदाकतनामा। रियासती हुकूमत ऐसे अफराद जो कि किसी वजह से अपनी तालीम तर्क कर दिए हैं, इन्हें आगे तालीम जारी रखने का एक मौका देते हुए इन कोर्सेज में दाखिला दे रही है। मज़कूरा कोर्सेज तेलुगु के अलावा उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के लिए भी है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त मी सेवा पर 17 अगस्त से 23 सितंबर दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात वेबसाइट पर देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की 24,156 नशिस्तों पर पहले मरहले में दाखिले।
रियासत में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की 28,627 नशिस्तें पाई जाती है, जिनमें 24,156 नशिस्तें पहले मरहले की पॉलीसेट काउंसलिंग के जरिए उम्मीदवारों ने हासिल कर ली, जबकि मजीद 4,471 नशिस्तें बच गई हैं। कुल 120 सरकारी और खानगी कॉलेजेस में 62 तालीमी इदारों में तकरीबन तमाम नशिस्तों पर दाखिला हो चुका है, जिनमें 48 सरकारी, 13 खानगी, एक प्राइवेट एडेड कॉलेज पाया जाता है। पॉलीसेट के पहले मरहले की काउंसलिंग का हफ्ते को इनेकाद अमल में लाया गया था। रियासत भर में 30,753 तुलबा ने वेब ऑप्शन का इंतखाब किया, जिनमें 24,156 तुलबा ने नशिस्तें हासिल की। इन तुलबा को चाहिए कि वो जारिया माह की 20 तारीख तक ट्यूशन फीस अदा करते हुए ऑनलाइन में सेल्फ रिपोर्टिंग करना चाहिए। पॉलीसेट के कन्वीनर तोपन मित्तल ने ये बात बताई। 1 सितंबर से तालीमी साल का आगाज होगा और इसी माह की 6 तारीख से क्लासेस को शुरू किया जाएगा। इंटर साल अव्वल में दाखिले तारीख में तौसी। 2 साला इंटरमीडिएट कोर्स की तालीम फ्राहम करने वाले तमाम सरकारी, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, टीएस रेसिडेंशियल, टीएस सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल, टीएस ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, टीएस मॉडल, बीसी वेलफेयर, केजीबीवी, इंस्टीट्यूट जूनियर कॉलेजेस और कंपोज जूनियर कॉलेजेस को मुतल्ला किया गया है कि तालीमी साल 2021-22 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक तौसी की गई है। इंटरमीडिएट साल अव्वल ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। इंटरमीडिएट साल अव्वल के ऑनलाइन क्लासेस का 16 अगस्त से आगाज हुआ, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। मुसलसल वबा के पेश नज़र हुकूमत ने जारिया तालीमी साल ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दी थी। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंटरमीडिएट साल दुवम की ऑनलाइन क्लासेस का 1 जुलाई को आगाज किया था। ये क्लासेस दूरदर्शन और टी-सेट पर टेलीकास्ट की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के प्रेस नोट में कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस के औकात सुबह 8 बजे तक 10:30 तक और 3 बजे दोपहर तक 6 बजे शाम होंगे। इंटरमीडिएट साल दुवम के सुबह के सेशन की तफसीलात इस तरह है। पीर, मंगल, चाहशुमा और जुमेरात को सुबह 8 बजे तक 8:30 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री 8:30 तक 9, मैथ 2A 2B 9 तक 9:30, बॉटनी, जोलॉजी 9:30 तक 10, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स 10 तक 10:30, सिविक्स, हिस्ट्री जुमा को सुबह 8 तक 8:30 तक, अंग्रेजी 8:30 तक 9, हिंदी 9 तक 9:30, संस्कृत 9:30 तक 10, कॉमर्स और 10 तक 10:30, अरबी हफ्ते को उर्दू मीडियम तुलबा के लिए 8 तक 8:30, फिजिक्स, केमिस्ट्री 8:30 तक 9, मैथ्स 2A 2B 9 बजे तक 9:30, बॉटनी, जोलॉजी और 9:30 तक 10 बजे, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस उर्दू मीडियम के लिए होंगी। शाम का सेशन इंटरमीडिएट साल अव्वल का होगा, जिसमें पीर, मंगल, चाहशुमा, जुमेरात को 3 तक 3:30, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3:30 तक 4 बजे, मैथ 1A 4 बजे तक 4:30, मैथ्स 1B 4:30 तक 5 बजे, बॉटनी, जोलॉजी 5 तक 5:30, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स 5:30 तक 6 बजे, सिविक्स, हिस्ट्री जुमा को 3 बजे तक 3:30, योगा व मेडिटेशन इंग्लिश 3:30 तक 4 बजे, तेलुगु 4 तक 4:30, संस्कृत 4:30 तक 5 बजे, हिंदी 5 बजे तक 5:30, उर्दू और 5:30 तक 6 बजे अरबिक की क्लासेस होंगी। हफ्ते को सिर्फ उर्दू मीडियम की क्लासेस होंगी। 3 तक 3:30, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3:30 तक 4 बजे, मैथ 1A 4 तक 4:30, मैथ 1B 4:30 तक 5 बजे, बॉटनी, जोलॉजी 5 बजे तक 5:30, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और 5:30 तक 6 बजे, सिविक, हिस्ट्री की क्लासेस होंगी। हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर की जानिब से गुरबा व मरीजों में फलों की तक़सीम।
आरमूर मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर आरमूर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचकर मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाते हुए इनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं की गई। इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल के हालात का जायजा लिया गया। इस तरह इन नौजवानों की जानिब से शहर के गुरबा व माजूरीन में भी फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक शेख माजिद व मोतमिद आला हुसैन खान ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि MBT का मकसद अवामी खिदमत है। इसी के तहत इसकी जानिब से फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आरमूर में सरकारी दवाखाने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम फ्रूट तकसीम किए हैं मजलिस बचाओ तहरीक MBT पार्टी की तरफ से। और आज 15 अगस्त का फैमिली काउंसलिंग के लिए आए लड़के के अफराद खानदान पर अजीम कुरैशी व गौस की जानिब से खौफजदा करने के लिए हमला। करीमनगर के रहने वाले लड़के व इनके अफराद खानदान की जानिब से पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। शहर में दिन ब दिन गैर समाजी अनासिर में इजाफा होता जा रहा है और इसी नौयत का एक और वाक़या शहर निज़ामाबाद में आज पेश आया, जहां पर मियां बीवी के दरमियान के तनाज़े को ख़त्म करने के लिए शहर वुमेन पुलिस स्टेशन पर दोनों जानिब के अफराद खानदान को बुलाया गया, जिसमें लड़की वालों की जानिब से शहर निज़ामाबाद के स्लाटर हाउस सब कॉन्ट्रैक्टर अजीम कुरैशी व गौस व कई नौजवानों ने शिरकत करते हुए करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के व इनके अफराद खानदान को खौफजदा करने की गर्ज से हाथापाई की, जिस पर शहर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। अजीम कुरैशी है और दाद द्वारा पट्टे है, उनका भाव नहीं भी है, 2 भाव नया है हाउस बल के है। हमारे घर वाले को मारे आखिर बोर्ड के वही चौधरी की कैसा छोड़ता तू बोले कार में से उतर के गला पकड़ के कलम पे किधर को उधर मारते हैं तो कैसा जाता है गरीब नगर में कार में से उतर बोल के बोले तो रिटर्न टोन को लेके गए, हमें कार लेके गए तो किधर भाग गए सब। तो हम काउंसलिंग करते तो बच्चों को अंदर लेके काउंसलिंग कर रहे थे तो अजीम कुरैशी के आगे में बाजी बुला के बात करना है तुम्हारे से बोल के उसके दोस्तों को बुला के मारने लगा। दोस्तों उसके भनई ऐसी इसके हौस के भनई अजीम कुरैशी और उसके दोस्तों उनके सब मेरे को ऐसा होता था मारे और होठ पे मारे और हाथी को मारे भाई चप्पल छोड़ के टाउन की तरफ भाग के आ गया। कल बरोज़े पीर बतारीख 16 अगस्त 2021 को बाद नमाज इशा बमुकाम खानका हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती कंटेश्वर में जलसे याद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा मनाया गया। जलसे के आगाज में तिलावत कुरान करीम का शर्फ मौलाना हाफिज खादरी ख्वाजा अहमद मोहिउद्दीन इफ्तिखारी कामिल पाशा ने हासिल किया। मौलवी शौकत रजा खादरी ने कलाम सुनाया। मौलाना काजी सूफी शाह मोहम्मद अब्दुल खादर खादरी हैदराबाद और मौलाना हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी खादरी अलमारूफ हकानी पाशा क़िबला सज्जदा नशीन आस्ताना अलैया हजरत शजाउल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद बसीरत अफरोज खिताब किया। इस जलसे की सरपरस्ती हजरत सैयद अब्दुल खादर खादरी अलमारूफ वाहिद पाशा क़िबला हैदराबाद नेशनल कोऑर्डिनेटर और इंडिया सूफी सज्जदा नशीन काउंसिल ने की है, जबकि जलसे की निगरानी सूफी यूनुस मिर्जा खादरी चिश्ती बियाबानी सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी साहब की है और मेहमानों का इस्तकबाल सूफी मोहम्मद अब्दुल समी बंदा नवाजी और सैयद शाह और शतारिल खादरी ने किया है। इस जलसे के मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद ऐनुद्दीन चिश्ती, मौलाना सैयद रहमत मोहम्मद अल हुसैनी बंदा नवाजी अल मारूफ रहमत बाबा हैदराबाद, मौलाना मोहम्मद आबिद अली खान खादरी मखतूरी, मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन बंदा नवाजी हैदराबाद से शिरकत की है। इख्तिताम में हजरत सैयद मजहर आलम कादरी सज्जदा नशीन निजामाबाद ने तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया। दीन की पनाह भी है, दीन को बचाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। दाद के दस्त यजीद अपना सर दिया लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ न दिया। अफ्ताह के बिनाए ला इलाहा हुसैन, ये हक है कि सरकार हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो तारीख रुबाई सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाई को पेश नजर रखते हुए इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी सीरत तैयबा को पढ़ें, आपके बताए हुए रास्ते पर अपनाएं। यकीनन इमाम अली मकाम ने हमारे लिए हमारे दीन की हिफाजत के लिए जो जामे शहादत नोश किया, आज इस दीन पर
इसी इस्लाम पर नशीन काउंसिल की तरफ से बहुत बड़ा सूफी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उसके ताल्लुक से मैं ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर वाली जनाब मोहम्मद अब्दुल कादर कादरी साहब और मारूफ रहीद बादशाह साहब किबला मददुल्लाह आली से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी ख्वाहिश है कि तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि नासिब बहुत जल्द यहाँ पर इंतजाम जलसा नासिबों का सूफी कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, तो उसके अंदर आप तमाम लोग शिरकत करें और यहाँ के जिम्मेदार लोग का साथ दें। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों व गुरबा की मदद करने वाली एक ही हुकूमत टीआरएस हुकूमत। किसानों व दलित तबके की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से बेशुमार स्कीमात जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी इन्होंने कोटगिर मंडल के दौरे के दौरान ट्रैक्टर चलाया व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। रियासती वज़ीर आला केसीआर की कारकर्दगी से मुखालिफ कायदीन बौखलाहट का शिकार। इख्तिताम में आने के लिए अवाम को कर रहे हैं गुमराह। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व एमएलए जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। जिले परिषद इजलास का जिले परिषद चेयरमैन की सदारत में इनेकाद। मुख्तलिफ मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। मौसमी अमराज से बचने के लिए अवाम को आगाही दी जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज का इजलास से खिताब। डोनकेश्वर में मोहब्बत के नाम पर एक नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी। हामिला होने पर अफरादे खानदान की जानिब से पुलिस स्टेशन में किया गया मुकदमा दर्ज। खानका हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर जलसे याद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद। जलसे में इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अराकीन ने की शिरकत व खिताबात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।